ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Hare Krishna, reading from Srimad Bhagavatam, Canto number 1, chapter number 6, entitled as Conversation between Narad and Vyasadeva, and the text number 18. Rupam Bhagavato Yattan रूपं भगवतो यत्तन् मनः कान्तं शुचापहम् मनः कान्तं सुशापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे पश्यन् सहसोदस्ते वैक्लव्यादुर्मना इव. वैक्लव्यादुर्वना इव। Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki translation. The transcendental form of the Lord as it is satisfies the mind's desire and at once erases all mental incongruities. Upon losing that form, I suddenly got up, being perturbed, as is usual when one loses that which is desirable. Purport. That the Lord is not formless is experienced by Narada Muni, but his form is completely different from all forms of material experience. For the whole duration of our life, we go on seeing different forms in the material world, but none of them is just apt to satisfy the mind, nor can any one of them banish all perturbance of the mind. These are the special features of the transcendental form of the Lord. And one who has once seen that form is not satisfied with anything else. No form in the material world can any longer satisfy the seer. That the Lord is formless or impersonal means that he has nothing like a material form and is not like any material personality. A spiritual being having eternal relations with that transcendental form of the Lord, we are life after life searching after that form of the Lord, and we are not satisfied by any other form of material appeasement. Narada Muni got a glimpse of this, but having not seen it again, he became perturbed and stood up all of a sudden to search it out. What we desire, life after life, was obtained by Narada Muni, and losing sight of him again was certainly a great shock. हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का आज के हमारे इस्कॉन गोरेगा वेस्ट के श्रीमद् भागवत कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। विशेष करके ये जो श्लोक हम आज देख रहे हैं ना, इसमें हम बहुत सारे एंगल्स है जिसमें हम एम्फोसिस कर सकते हैं या फोकस कर सकते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम जो फर्स्ट पार्ट हम देख सकते हैं, तो that Krishna is having a transcendental form. He is not formless. He has a form. तो भगवान को रूप है, वो निराकार ओमकार नहीं है, वो साकार सविकार है। फिर उसके बाद सविकार नहीं, विकार माने ये रहता है, विकार के दो मतलब रहते हैं, उसमें से विकार मतलब जो दही में डालते हैं, दूध में डाल के दही बनाते हैं, उसको विकार बोलते हैं, मतलब कंटामिनेशन। तो साकार भगवान है, सविकार नहीं है। सविकार का और भी एक मतलब निकलता है जो पॉजिटिव है, बट जनरली वी डोंट यूज दैट वर्ड मच। ओके, देन द सेकंड, लॉर्ड्स दर्शन गिव सेटिस्फैक्शन टू द माइंड्स डिजायर। मन की इच्छाओं को, अपनी इच्छाओं को, जो अपने डिजायर, स्पेशली स्पिरिचुअल डिजायर से इनको फुलफिल कर देते हैं वो। तीसरा है सारी मेंटल incongruities. I don't know, I'm not satisfied with the pronunciation of this word. Incongruities. I don't, incongruation मैंने सुना है, but ये congruities बड़ा ये लग रहा है। So that is the third point. तीसरा, upon losing something we become perturbed. अगर हम कुछ अपने जीवन में खो देते हैं तो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये 4 पॉइंट्स है जिसके ऊपर व्यक्ति केवल एक ट्रांसलेशन और परपट को लेके एम्फसिस एंड फोकस कर सकते हैं, परंतु भगवान जो अपने काल के स्वरूप में इस भौतिक जगत में रहते हैं, वो हमें इतना अलाउ नहीं करेंगे कि हम चारों पॉइंट्स के ऊपर फोकस करें।
तो आई विल टेल यू जस्ट ब्रीफली ये चारों पॉइंट्स के बारे में। इस भौतिक जगत में एक जो प्रिंसिपल है वो बहुत कॉमन है। हमारे कर्म या हमारे कोटा के हिसाब से ना हमें ज्यादा सुख मिलेगा ना हमें ज्यादा दुख मिलेगा। जितना हमें अलॉटेड है वही हमें मिलेगा। जैसे रेलवे में अगर हम जाते हैं, यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं, तो हमारा जो कोटा है उसमें एक सीट है तो वही हमें मिलेगा। स्लीपर क्लास में अगर हम बैठे हैं तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि एसी की हवा मुझे यहाँ तक आ जाए, राइट। तो हमारा जो कोटा है, जितने सीट्स हमने बुक किया, हम भले ही एक आदमी ट्रैवल करे लेकिन हमने 6 सीट बुक किए तो 6 के 6 अपने हैं, राइट। तो सिमिलरली इस भौतिक जगत में हमें अपने कोटा के हिसाब से न ज्यादा भगवान देते हैं न कम देते हैं। देयर इज वन वेरी वंडरफुल श्लोका जो एवरी टाइम ऐसे ही आउट ऑफ ये मैं बोलता हूँ करके, बट अभी मुझे वो याद नहीं आएगा जल्दी से। सो दैट वदन्यता सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रंभसा, दैट इज द श्लोका। So I will search it out in Vedavis. It's first canto. We already learned it. 1.5.18. अब भी जस्ट गए। ये क्या बोलते हैं? This was the shloka the day I was the Vrindavan last day. That time I took this shloka. Why? How I remember? Because this is the last shloka which is right now on our YouTube. After that, most of the Bhagavatam classes it's not yet released. January 26. Ah, okay. Tassaiva. Would you like to recite? तस्सैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद्भ्रमतामुपर्यध तल्लभ्यते दुःखवदन्यता सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररंहसा। Persons who are actually intelligent and philosophically inclined should endeavor only for the purposeful end, which is not obtainable even by the wandering from the topmost planet Brahmaloka down to the lowest planet Patala. As far as happiness from the sense enjoyment considered, it can be obtained automatically in due course of time, just as in course of time we obtain miseries even though we do not desire them. Okay, तो जो व्यक्ति सही में बहुत बुद्धिमान है उस व्यक्ति ने अपने जीवन में ऐसी चीज प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए जो ब्रह्मा जी के लिए भी अवेलेबल नहीं है, ना डेमीगॉड्स के लिए अवेलेबल है, देवी देवताओं के लिए, ना पाताल सुतल तलातल के लोगों के लिए अवेलेबल है। और रही बात कि अरे दुनिया में आए हैं तो ऐश कर लो, मजे कर लो, दैट काइंड ऑफ ना यावम जीवम सुखम जीवेत, दैट काइंड ऑफ श्लोका है, एवं पावेत घृतम पीवेत, समथिंग लाइक दैट वन श्लोका इज देयर, सुभाषित इज देयर, नॉट श्लोका। तो इट इज सेड दैट आप मटेरियल वर्ल्ड में, आप भौतिक जगत में आए तो जिस प्रकार से आपको आपके इंद्रिय तृप्ति का ख्याल ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे बिना मांगे हम लोगों को दुख आते ही रहते हैं जीवन में। हम में से कोई मांगता नहीं है हाँ मेरे जीवन में दुख आए। वो केवल कुंती महारानी जी थी जिन्होंने अपने जीवन में दुख मांगे कि भगवान और दे सकते हो आप मुझे। वो एक प्रहलाद महाराज थे और वासुदेव दत्त थे कि जिन्होंने बोला कि बाकी सारे जीवात्माओं को अब आध्यात्मिक जगत में लेके जाइए, ऑन बिहाफ ऑफ देम मैं यहाँ पे सफर करूंगा करके। हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला सफर करूंगा। तो ऐसे कुछ प्रामाणिक भक्त ही है। हमारे जीवन में हम दुख मांगते नहीं है, परंतु काल के साथ साथ वो आता है, बराबर है। शारीरिक हो, मानसिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, कोई भी पद्धति का क्लेश हमारे जीवन में आता है। तो वैसे ही सुख भी अपने जीवन में ऑटोमेटिकली आता ही है।
उसके लिए ज्यादा एक्स्ट्रा एंडेवर करने की, एक्स्ट्रा प्रयत्न करने की, और बुध बुध फेन पंखे मुंह से पूरा झाग निकल रहा है, क्योंकि जीवन में कुछ तो एक सुख का क्षण चाहिए मेरे जीवन में, इसलिए मैं करूंगा। सुबह 4 बजे से लेके रात के 12 बजे तक मैं काम करते रहूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में मुझे सुख चाहिए। अरे वो ऑटोमेटिकली आने वाला है, वो मिलने वाला है, अकॉर्डिंग टू श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो भगवान का दर्शन का यहाँ पे जो बोला गया है कि नारद मुनि ने दर्शन किया भगवान का, और आफ्टर सम टाइम, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, जो दर्शन उनको हृदय के अंदर हो रहा था वो चला गया, गायब हो गए भगवान, और उसके बाद वो डिस्टर्ब हो गए। तो भगवान का दर्शन भी छोटे से ज्यादा मिलता नहीं है। अभी इसके बाद आगे नारद मुनि जब बोलते हैं कि मैंने बहुत प्रयत्न किया वापस भगवान को देखने का, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, तब मुझे एक ध्वनि सुनाई दी कि इस जन्म के लिए इतना ही काफी है, अगले जन्म में मैं तुम्हें दर्शन दे दूंगा। तो एवरीथिंग, वेदर इट इज सुख, दुख, और जो कुछ भी रिसोर्सेस, स्रोत वगैरह हमारे जीवन में हमें प्राप्त होते हैं, वो हमारा कोटे का हिसाब से ही मिलेगा, ना किसी को ज्यादा मिलेगा, ना किसी को कम मिलेगा। सो कुछ भी जीवन में जो आ रहा है, इवन सुख आया है, तो उसको ग्रेटफुल हार्ट से, कृतज्ञता, एहसान समझ के हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और दुख भी हमारे जीवन में आता है, तो एक मैच्योरिटी प्राप्त करने के लिए भगवान ने मेरे लिए सर्कमस्टेंसेस और ये मेरे जीवन में सिचुएशन लाई है, ऐसे बोल के हमें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज कंप्लेनिंग नेचर ये हमारे जीवन में हमेशा रहेगा, वी कंप्लेन ऑलवेज कि नहीं ऐसा क्यों है मेरे जीवन में, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका क्यों ऐसा हुआ, मेरा क्यों नहीं ऐसा हुआ, ऑलवेज कंप्लेनिंग 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 करे। सो वन पर्सन, वन हु इज नॉट ग्रेटफुल विद इन द हार्ट, ऑलवेज इनटू कंप्लेनिंग मोड। जो व्यक्ति अपने जीवन में कृतज्ञता वाला हृदय नहीं रखता है या भावना नहीं रखता है, वही व्यक्ति है जो हमेशा शिकायत करते रहेगा जीवन, चाहे कितना भी भगवान उसको रिसोर्सेस दे, कितनी भी भगवान उनको फैसिलिटी दे, ही विल नेवर बी सेटिस्फाइड विद दैट। तो भक्त के जीवन में उसने एक समझना चाहिए, सुख हो, दुख हो, स्रोत हो, रिसोर्सेस हो, सब कुछ भगवान हमें हमारे कोटा और हमारे कर्मों के हिसाब से देते हैं। भक्त के जीवन में भगवान उसी तरीके से रिसोर्सेस देंगे जो, और सुख या दुख देंगे जो उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भगवान देंगे नहीं। कुंती महारानी बनने की कोशिश हमें कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर महाराज, प्रहलाद महाराज बनने की कोशिश हमारे जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए, है ना। दूसरे दिन हम शरीर छोड़ देंगे, नहीं तो आध्यात्म छोड़ देंगे हम लोग। तो इसलिए अनुकरण नहीं करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, अनुशीलन करना चाहिए उन भक्तों का हमें। तो भगवान हमेशा हमारे कैपेसिटी के हिसाब से ही हमारी परीक्षा लेंगे। इसलिए अपने जीवन में परीक्षा का समय जब आता है, तब भगवान को कंप्लेन नहीं करना, मैंने तो 16 माला से एक्स्ट्रा माला की थी, एकादशी उपहार में 64 माला करता था या करते, फिर भी भगवान ने मेरे जीवन में ऐसी सिचुएशन क्यों लाई। अरे वी शुड बी ग्रेटफुल इफ इनकन्वीनियंसेस आर एक्चुअली स्टेपिंग टुवर्ड्स मैच्योरिटी। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में इनकन्वीनियंसेस को बहुत अच्छे से लेके उसमें से ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड रखता है, तो डिवोशनली दैट पर्सन बिकम्स वेरी मच मैच्योर। तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, ठीक है। अगर सबसे पहले इनकन्वीनियंसेस को क्या बोलेंगे हिंदी में, तो अपने जीवन में कोई उतार चढ़ाव वाली या तकलीफ वाली कोई परिस्थिति आ जाती है, तो उस परिस्थिति को हमें हमारे जीवन में कृतज्ञता के भावना से अगर हम अपने जीवन में लेते हैं, तो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति करना और मैच्योरिटी लाना ये बहुत सहज हो जाता है हमारे जीवन में। तात्पर्य में ये बता रहा था करके। तो भगवान ने हमें इनकन्वीनियंसेस दिए, तकलीफ या थोड़ा सा असहजता वाली परिस्थितियां हमारे जीवन में लाई है, तो दैट इज एक्चुअली ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड।
No, I always say, when you get something which you are desiring, that means you have a mercy of the Lord. But you are not getting something which you desire, that is the extra mercy of the Lord, and Lord has some better plan for you. Or He has a better situation or thing or resources kept for you. Just have a patience. Give time to Krishna, give time to yourself. भगवान को थोड़ा सा टाइम दीजिए वो चीजें रिवील करने के लिए, एंड यू विल सी। मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल बताता हूँ हमेशा, ये शायद से आपने भागवतम क्लासेस में भी बताया होगा। ये आपने न्यूज़पेपर में देखा है, छोटे बच्चों का एक पेज आता है और उस पेज में बहुत सारे एक्टिविटीज रहते हैं। उसमें से एक एक्टिविटी रहता है कि बहुत सारे डॉट्स रखे हुए रहते हैं और उसको नंबर दिए होते हैं। उन बच्चों को क्या करना होता है, उन डॉट्स को ज्वाइन करना होता है। तो प्रथम ऐसा देखा जाए तो ऐसा लगता है ये क्या है, एक रैंडम डॉट से करके इसमें से क्या आएगा। परंतु जैसे ही पेन या पेंसिल लेके हम उसको ऐसा ज्वाइन करना चालू करते हैं उन डॉट्स को, we come to know, my god, this is unicorn, this is horse, this is elephant, है ना, इसका कितना ब्यूटीफुल पिक्चर है करके। सिमिलरली अपने जीवन में जो अच्छे सिचुएशंस आते हैं या बुरे सिचुएशंस आते हैं, तकलीफ आते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, ये सारे के सारे उन डॉट्स के समान है। एंड अगर डिवोशनल सर्विस या डिवोटीज के एसोसिएशन आके श्रीमद् भागवतम सुन के अगर उन डॉट्स ज्वाइन करने की कोशिश अगर हम अपने जीवन में नहीं करेंगे तो जीवन के आखिरी तक हमें लगेगा ये क्या रैंडम डॉट्स, भगवान ने मेरे जीवन में ऐसा क्यों किया। परंतु भक्तों के संग से, विशेषता भक्तों के द्वारा जब हम श्रवणम करते हैं, तब वो प्रिंसिपली डिवोशनल प्रिंसिपल्स जब हमें अपने जीवन में पता चलते हैं, देन वी ट्राई टू ड्रॉ द लाइन बिटवीन दोज डॉट्स। एंड जीवन के आखिरी तक जब तक हमें डिवोशनल मैच्योरिटी आती है, तब तक हमें पता चलता है कि कृष्णा हैज ड्रॉन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर आउट ऑफ माय लाइफ। सो इसलिए सुख हो या दुख हो, both can be accepted very, nicely. of course तकलीफ होती है, सुख को एक्सेप्ट करने में इतनी तकलीफ नहीं, परंतु दुख को होती है, परंतु स्टिल वी हैव टू लर्न इट। सम दुख सुख क्षमी, ये भगवान के भक्तों का नेचर होना चाहिए और ये हमें अडॉप्ट करना चाहिए। उसके अलावा कोई चारा नहीं है अपने पास, ठीक है। चारा का घोटाला करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो नारद मुनि को भी भगवान ने उतना ही दर्शन दिया जितना उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागृत करने के लिए, जिज्ञासा जागृत करने के लिए नेसेसरी था या जरूरी था। तो भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद भगवान गायब हो गए, तो वो जिज्ञासा हो गई। जैसे हम रास्ते से चलते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते थे, तो उस समय कोई सुंदर पर्सनालिटी दिख जाती है हम लोगों को, तो अरे अरे वो कितना ब्यूटीफुल था, नहीं वो थी, ब्यूटीफुल थी होता है, हैंडसम था होता है अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर। ओके, हाँ तो अरे सच में इट्स नॉट ऑलवेज आउट ऑफ लस्ट, बट इफ समबडी इज अ वंडरफुल इन सीइंग, वी दैट पर्सन डिजर्व्स अ सेकंड लुक। सही में भगवान ने क्या सुंदरता दी है इस व्यक्ति को करके, बराबर। तो जस्ट लाइक मैं और मेरे साथ में मेरे एक फ्रेंड थे, मैं आई थिंक आई वाज कमिंग फ्रॉम लेट नाइट हुआ था, आई वाज कमिंग टू अवर रासबिहारी टेम्पल। आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर कौन सी जगह से प्रोग्राम लेके आ रहा था, एंड दैट पर्सन वाज फ्रॉम यूपी, यंग लड़का था, 21-22 years का, मुस्लिम बॉय करके। बट हम तीन लोग जैसे ही गाड़ी में बैठे आए, एंड माय टू फ्रेंड्स वेयर देयर, एंड जनरली हम फोटो देखते हैं उबर ओला में, एंड देन दैट पर्सन ने बोला ओटीपी बताइए सर, और उसने देखा। तो व्हेन वी सॉ हिम, इट वाज वेरी नेचुरल, ही वाज रियली वेरी नाइस बॉय। मींस कृष्णा हैज गिवन हिम दैट प्रॉपर फेस एंड दैट स्ट्रक्चर, वी आर लाइक भगवान ने आपको कितना शिद्दत से बनाया हो, फुर्सत में बनाया है इन दैट वे। एंड व्हेन वी वर कमिंग डाउन करके, तो it's just a token of appreciation because he has a nice conversation with us for one almost 45 minutes, and I said
because he was a Muslim, I told him, say the Lord has blessed you with such kind of you are really handsome. But make sure that you will use this for the Lord's service. So I said, then I particularly mentioned for Allah's service. Okay. So in that way. So many times it happens. So if somebody is a beautiful, we appreciate, not out of always lust or attraction or material attraction. Okay. तो when Krishna gave that darshan, वो जिज्ञासा जो है नारद मुनि के हृदय में वो जागृत हो गई, और उसके बाद फिर नारद मुनि उनको फिर से देखने की चेष्टा करने लगे, फिर से मेडिटेट करें. विषया विनिवर्तन्ते निराहार देहिनम रसवर्जम रसोप्यस्व परम दृष्ट्वा निवर्तते. ये केवल खाने के लिए या केवल सूंघने के लिए या केवल देखने के लिए नहीं है, ये भगवान के दर्शन के लिए भी लागू होता है. इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, दैट Narada Muni got a glimpse of this, but having not seen it again, he became perturbed and stood up all of a sudden to search it out. One more. That second paragraph, first line. As spiritual being, having eternal relations with that transcendental form of the Lord, we are, life after life, searching after that form of the Lord, and we are not satisfied by any other form of material appeasement. Because once we have got that taste, हमें भगवान का दर्शन करने के बाद वो टेस्ट मिली हुई है कि दैट इज सच अ वंडरफुल पर्सन, सच अ हैंडसम मैन. नो, इवन अ काम देवता कैन बी, काम देवता मूर्छित हो जाते भगवान का दर्शन करके, साइड ग्लांस देख के, इसलिए उनको मदन मोहन बोला जाता है. तो ऐसे व्यक्ति को देखने के बाद हमारी क्या हालत होगी. इसलिए इस मटेरियल फॉर्म में भगवान हमें दर्शन देने नहीं आते हैं. वी विल बर्स्ट. This material body cannot handle the vision of the Lord. We will die all of a sudden just by seeing Krishna, and वो जो attraction develop हो जाएगा, या फिर वो जो intense desire उत्पन्न हो जाएगी भगवान को देखने के बाद कि such attractive, this material body cannot handle that. Most of the time we see people when they get attracted to the material form, बाहर की भौतिक जगत में भक्त जब, नॉट भक्त, लोग जब किसी से अट्रैक्ट होते हैं, मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट उनको सेंस कंट्रोल नहीं होता है फिर, एंड दे गो टू सम काइंड ऑफ एन हिनियस एक्टिविटी, राइट. तो सोचिए एक नॉर्मल इंसान के साथ अगर ऐसा होता है सेंस कंट्रोल नहीं होने के बाद, यहाँ पे हम मटेरियलिस्टिक वे ऑफ नॉन सेंस कंट्रोल नहीं बोल रहे, स्पिरिचुअल वे में बोल रहे हैं कि बाय सीइंग कृष्णा वी विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल, will not able to, more than a control I will say, will not be able to behold that beauty. भगवान के उस सुंदरता को हम अपने अंदर धारण ही नहीं कर सकते इस मटेरियल बॉडी के साथ, मटेरियल इंटेलिजेंस एंड मटेरियल इमोशंस के साथ. इसलिए इट्स वेरी गुड दैट कृष्णा इज नॉट गिविंग दर्शन टू अस. जिस दिन हमारा सच्चिदानंद स्वरूप हमारे सामने आएगा और भगवान अपने आप सामने आ जाएंगे, बिकॉज सच्चिदानंद विग्रह को केवल सच्चिदानंद स्वरूप ही देख सकता है. तो क्यों भगवान सामने नहीं आते, इसका एक रीजन ये भी है, 100% हम इम्प्योर है, वो पात्रता हमारे पास है नहीं, परंतु दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. हाँ, दर्शन के लिए आते हैं. मेनी टाइम इट हैपेंस, जब भगवान का पहला दर्शन खुलता तो लोगों को, वाह. आपने कभी अगर फोटो, आपने कभी यूट्यूब सर्च किया, हजरत करते होंगे, परंतु यूक्रेन में कीव टेम्पल जो है, यूक्रेन का राजधानी है कीव, कीव के राधा माधव का इंस्टॉलेशन सेरेमनी का एक छोटा सा वीडियो है, काइंड ऑफ ए ट्रेलर, उसको देखना. जब वो दर्शन खुलता है ना, सम ऑफ दोज डिवोटीज, देयर रिएक्शन कैसी थी पता है, दे आर लाइक ना ऑलमोस्ट 5 फीट और 6 फीट के डिटीज है वो राधा माधव, वो ऐसे देखते हैं लाइक दैट, लिटरली दैट. ऐसा नहीं कि कैमरा उनके पास है, उनको पता है इसलिए वो देख रहे हैं करके. सम ऑफ देम लाइक, माय गॉड,
So in 2004, I think, when the first time जब पंचतत्व का ऑल्टर खुला था, तो नोबडी हैज सीन हाउ मेनी 7 फीट के 9 फीट के ऐसा हम बोलते, परंतु वो ऐसा उसको हम ये नहीं कर पाते अपने जीवन में, क्या बोलते सा, इमेजिन नहीं कर पाते। तो फर्स्ट टाइम जब उनका दर्शन खुला था 2004 में, इतने डिवोटी नहीं थे, तो आराम से हर कोई टेम्पल हॉल में बैठा हुआ था उस समय। माय गॉड, वो फर्स्ट दर्शन, and as soon as darshan opened, the first thing which started, that was Sri Krishna Chaitanya Prabhu. Do you know whose style is this? Param Pujya Loknath Swami Maharaj. He was the first person to sing that Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Karo More. My God, it was so intense. मेरे जीवन में मैंने वैसा फीलिंग सही में नहीं लिया वापस कभी भी फिर से। वो इतने बड़े बड़े ऐसे वो 6 फीट और 7 फीट के डीटी, एक हाँ, एंड देयर आर्म्स आर सो बिग, जैसे महाप्रभु ऐसा लगता है कि सही में वो आके ऐसे एम्ब्रेस करेंगे, इतना ह्यूज दिखते हैं वो सामने खड़े रहने के बाद। एंड इट वाज अमेजिंग, वो जो एक्सपीरियंस डिवोटीज ने लिया था अपने जीवन में, दिस इज व्हाट अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज एक्चुअली अमेजिंग। इट इज सेड ना, द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ दिस वर्ल्ड, ऐसा लिखा जाता है मायापुर के सामने, द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो once we have experience special spiritual experience, it is very difficult to go back to the material things. हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।